आपके लिए लेसन बना रहा हूँ। उसमें पहले इंग्लिश की रीडिंग है, फिर फास्ट रीडिंग है, फिर फोनेटिक्स वाली रीडिंग है और फिर उस पोएम का या उस लेसन का हिंदी में अनुवाद है। और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। इसी एक वीडियो में आपको ये सब कुछ मिलेगा। ओके। हेलो चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू रीड a new lesson, The Little for Three. First of all, we have to read the lesson word by word. Okay? Now you listen the lesson and after that I will explain you in Hindi. Okay? First of all, you have to read with me. The name of the lesson is The Little Fir Tree. Shetty, the magician, was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. The sad fir tree had leaves like needle, and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. Next morning, its wish was granted. Soon a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree. I wish I had gold leaves, as goats do not eat gold leaves. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. The man came along and stole the golden leaves. I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. The next day, its glass leaves shone in the bright sun. How happy I am, it said. At night, the wind blew. All the glass leaves broke. Oh dear, said the fir tree. I like my old leaves, old needle-like leaves. Best, for gods do not eat them. No man can steal them. The wind not will do them no harm. The tree went to sleep. When he woke up the next morning, it had all its needles back again. Oh, I never was so happy, said the little fir tree. So, our next work is to translate this beautiful and good story into Hindi so we can understand the meaning and the moral of this story. Okay? Now we can again read with the phonetics and
try to understand the meaning of the lesson and words. Shetty, the magician, was returning home when all of a sudden it began to rain. बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जो है जब हम पढ़ रहे हों तो फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप हमें पढ़ना चाहिए. वर्ड टू वर्ड तो हमने पढ़ ही लिया. तो शेट्टी एक जादूगर अपने घर को जा रहा था और अचानक से क्या हुआ. सडन मतलब अचानक, SUDDEN, सडन मतलब अचानक. बिगेन टू रेन यानी कि बरसात होने लगी. इट रेन्ड हैविली, और कैसी बरसात थी वो, बहुत तेज बरसात थी. हेविली मतलब बहुत तेज सी, बहुत मूसलाधार बरसात. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. शेट्टी ने जो है लुक अराउंड यानी चारों तरफ देखा, फॉर शेल्टर छुपने के लिए जगह देखी, यानी शेल्टर मतलब जहाँ पे हम छुप सकें, रह सकें. और उसने क्या देखा, आ प्रेटी लिटिल फर ट्री, बहुत ही अच्छा एक फर ट्री को देखा उसने, लिटिल फर ट्री. ही ran towards it as fast as he could, और जितनी जल्दी वो जा सकता था, दौड़ सकता था, वो तुरंत उसके नीचे चला गया. Soon the rain stopped. फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बरसात बंद हो गई. शेट्टी was happy. शेट्टी बहुत ही खुश हुआ. That he did not get wet. और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो भीगा नहीं. Get wet का मतलब होता है वो भीगा नहीं. ओके, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. अरे तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरे ऊपर कितनी दया की है. आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ. आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम. तुम मुझसे कोई 4 वरदान मांगो, 4 तुम्हारी ख्वाहिशें मांगो, मैं तुम्हें दूंगा जरूर. ऐसा किसने कहा, मैजिशियन ने. मैजिशियन मतलब जादूगर ने. The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it, so it said, I wish I had green leaves like my other friends. तो उसने कहा कि मेरी जो लीव्स हैं वो बड़ी निडल की तरह हैं, बड़ी तीखी तीखी हैं, है ना, सुइयों की तरह. तो यार लेकिन मुझे जो है अपने दोस्तों की तरह एकदम ग्रीन लीव्स चाहिए, चौड़ी चौड़ी, बढ़िया. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, और अगले दिन उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई. सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स. उसी अगले दिन क्या हुआ, बकरियाँ आ गई और उन्होंने जो है उसकी सारी पत्तियाँ खा ली. ओह डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स. अरे भगवान, मेरी जो है पत्तियाँ कैसी हो जाएं, गोल्ड, सोने की जैसी हो जाएं, सोने की हो जाएं, ताकि ये बकरियाँ ना खा सकें. ठीक. When the little fir tree, जब वो सुबह उठा अगले दिन, it was surprised to see the gold leaves. वो बहुत एकदम अचंभे से हो गया कि उसके तो सारी जो पत्तियाँ हैं वो गोल्ड की हो गई. How happy, वो बहुत खुश हुआ. A man came along as told द गोल्डन लीव्स. वो आदमी वहाँ आ गए, उसकी जो है वो पत्तियों को तोड़ने लगे, क्योंकि वो कैसी थी, सोने की जैसी. आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इन स्टील, द मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स. और अब मेरी कैसी होनी चाहिए, पत्तियाँ जो हैं बहुत कांच की जैसी होनी चाहिए, ग्लास होनी चाहिए उसमें, ताकि कोई हाथ लगाए तो कट जाए. द नेक्स्ट डे ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन, हाउ हैप्पी आई एम. फिर अब अगली दिन तो जो है उसकी ग्लास लीव्स बन गई सारी, और वो बहुत खुश हुआ. एट नाइट द विंड ब्लो, अब हवा चलने लगी. ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, तो सारी जो है ग्लास लीव्स वो टूट के गिर गई. ओ डियर, आई सेड द फर ट्री, अरे बाप, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड्स डू नॉट ईट दैम. अरे मेरी तो पुरानी जो तीखी तीखी पत्तियाँ थी निडल की जैसी, वही बढ़िया थी.
no man can them and steal them and the wind will do no harm, और जो है हवा भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाती थी. The tree went to sleep. When he woke up the next morning, it had all its needle back. और वो वापस से वैसी की वैसी needle की जैसी उसकी वो हो गई, पत्तियाँ हो गई अगले दिन. Oh, I never was so happy, said the fir tree. अब वो जो है I never was so happy. अब मैं कभी ऐसा खुश नहीं था, said the fir tree. अब मैं वाकई में खुश हो गया हूँ, है ना. प्रेटी मतलब होता है ब्यूटीफुल. निडल्स आप जानते हैं सुइयों की जैसे. लीव्स का मतलब होता है आपका पत्तियाँ. गोल्ड मतलब सोना. स्टोन मतलब चुराया. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं जो मल्टीपल चॉइस है. द प्रेटी लिटिल फॉर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट क्या हुआ, वो अपने गोल्डन लीव से बहुत खुश था, लेकिन हुआ क्या. ये तीनों में से कौन सा आंसर होगा. A goat came along and ate them. वो बकरी खा गई थी. बकरी तो नहीं खाती गोल्डन लीव्स को. वो तो कौन ले. A man stole them. सेकेंड क्वेश्चन. The fir tree was sad. fir tree क्यों sad था, मतलब क्यों दुखी था. बताओ. Because it had yellow leaves. Because it had needle-like leaves. Because it had very short leaves. No, needle-like leaves, है ना. B वाला आंसर राइट है. थर्ड. The fir tree was not happy with the gold leaves. क्यों. क्योंकि the gold leaves broke और the man stole them. अब देखो 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है ना. चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन दिया गया वर्ड बिल्डिंग में. बाय चेंजिंग द सर्किल वर्ड टू इट्स अपोजिट एंड रीराइट द सेंटेंस. ओके. जैसे लाइट का है हेवी, आपको पहले एक एग्जांपल दे रखा है, तो वॉन्ट का क्या होगा. लूज. जैसे रीना वॉन द रेस, तो रीना लॉस्ट द रेस. लव hate. I hate eating vegetables. This glass of milk is full. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा. This glass of milk is empty. The old man is wise. The old man is foolish. Wise का क्या हो जाएगा. Foolish. अब हमें अन लगाना है और इम लगाना है. किसमें अन लगाना है, किसमें इम लगाना है, ये देखना है. हैप्पी, अनहैप्पी. आप मेरे साथ बोलें. हैप्पी, अनहैप्पी. पोलाइट, इम्पोलाइट. सीन, अनसीन. प्रॉपर, इम्प्रॉपर. लकी, अनलकी. पॉसिबल, इम्पॉसिबल. इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट. परफेक्ट, imperfect. Healthy, unhealthy. Safe, unsafe. Patient, impatient. Pure, impure. Okay. Now read this story. Okay. Rita loved her dog Sheru. The name of the dog is Sheru. Every day Sheru would go out of the house and come back himself. तो शेरू जो है घर से बाहर चला जाता है रोजाना, लेकिन वापस भी आ जाता है अपने आप ही. But one day he did not come home. और एक दिन वो आया नहीं तो Rita looked everywhere for him. Tear rolled down her cheek. वो उसको चारों तरफ ढूंढ के आ गई, लेकिन जो है क्या हुआ, मिला नहीं वो. तो उसकी आंखों से आंसू आ गए. रोल्ड डाउन हर चिक्स, और उसके गालों पर पहुंच गए वो आंसू. शेरू वॉज लॉस्ट. ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड. अरे मेरा तो कुत्ता गुम गया, वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा है.
रीता वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, जैसे वो घर पहुंची रोती रोती, शी गॉट इनटू हर बेड, और वो अपने बेड पे लेट गई। ऑल ऑफ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, और अचानक से उसके ऊपर कोई चीज़ कूदी। कैन यू गैस हु इट वॉज, आप बता सकते हैं वो कौन था? रीता वॉज वेरी हैप्पी, रीता बहुत ही खुश हुई। किसको देख के खुश हुई? शेरू को देख के। क्यों बच्चों? हाँ, तो हमें अपोजिट लिखना है, जो ये ब्लू ब्लू है। लव्ड का क्या हो जाएगा? हेटेड। गो आउट का कम आउट, कम इन। रीता का एवरीवेयर का नोवेयर। नाउ नोवेयर का एवरीवेयर। लॉस्ट का फाउंड। क्राइंग का एंजॉइंग, और हैप्पी का अनहैप्पी आपको लिखना है। नाउ रीराइट द पैसेज बिलो एंड यूजिंग द कैपिटल लेटर्स वेयर इट इज़ नेसेसरी। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले भी समझाया आपको कि जो कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लेते हैं हम। वन, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड है, तो जो वन का ओ है वहाँ से। सैटरडे डे का नाम है, लिखिए। अमरजीत नाम है, उसको भी कैपिटल में, उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिख दीजिए। सिस्टर रानी, इधर यहाँ पे रानी लिखा हुआ है, उसको भी आर को जो है कैपिटल में कर दीजिए। वेंट टू द पिकनिक। इंडिया, इंडिया को लिख दीजिए कैपिटल में। इंडिया गेट हो जाएगा। देयर, अब फुल स्टॉप है तो यहाँ पे देयर लिखा हुआ है तो टी बड़ा आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लास्ट में राज जो लिखा हुआ है उसको आर को बड़ा कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपके लिए है ये, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कहीं नाम है, कहीं फुल स्टॉप है, तो उनके वहाँ पे आपको क्या लगाना है? कैपिटल लेटर से शुरू करना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा, लुक एट द पिक्चर बिलो। इन द येलो बॉक्सेस देयर आर 8 थिंग्स दैट यू कैन सी 6 ऑफ देम in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. इसमें कुछ चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं लिखी है, तो वो आपको लिखनी है। ठीक है, 4 चीज़ें आपको लिखनी है। अभी डक्स हैं क्या? डक्स तो है, फ्लावर्स है, पोंड नहीं है, मैट है, कैप है, नहीं कैप लिखिए, है ना, और बर्ड्स भी लिखिए। जो जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे जो दे रखी है वो मत लिखिएगा, जो नहीं दे रखी है वो लिखनी है। लुक एट द पिक्चर अगेन एंड डिस्क्राइब द पिक्चर। अब यू कैन राइट द एटलीस्ट 5 sentences, ओके, बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। सो देयर इज 1 mat in the picture, 2 trees in the picture, 2 ducks in the picture, many flowers in the picture. One girl is sitting near the what? Near the mat. Now, Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in the dish?" Ha 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 ha. Ajit loved a garden in the dish. Yes. Dish, garden are tiny gardens planted in the shallow dishes. We must first put sand, manure and pebbles in the dish. Plant very tiny plants in it and place the dish on the window sill. और ऐसा हम कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी एंड दीज आर द आइटम्स। सो राइट डाउन ऑल द नेम्स एंड प्रैक्टिस वेल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर्स हैप्पी? कौन कौन से हैप्पी करते हैं, कौन कौन से लोगों को दुखी करते हैं? रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, अगर हम किसी को इज्जत देंगे तो क्या होगा? आदमी खुश होगा। पहली तरफ लिख दीजिए, इधर की तरफ। एंड सेकंड, नॉट सेइंग थैंक यू, अगर हम किसी को थैंक यू नहीं कहेंगे तो वो अनहैप्पी होगा, इधर लिख दीजिए।
ठीक है। ऐसे ही हमें बीइंग पोलाइट, अगर हम किसी से बिल्कुल नरमाई से बात करेंगे तो वो खुश होगा कि, या नाराज़ होकर बात करेंगे तो खुश होगा। हम पोलाइटली बात करेंगे तो खुश हो जाएगा वो, है ना। ये सब इधर लिखने हैं हमें, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे। और ये देखिए डायलॉग यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको इनके डायलॉग्स को पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। और ये आपको एक और एक्टिविटी इसमें दे रखी है, वो क्या है कि एक पेपर लेना, उसको रोल करना, उसको कट करना है और उससे एक जो है ट्री बना देना है रोल करके। तो ये आप कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेसन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं बच्चों, उसको अपनी हैंड राइटिंग में अच्छे से लिखो। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से खुद कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय।